नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। 22 सालों का लंबा इंतजार कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। लगातार पार्टी के कई मोर्चों पर यह सवाल खड़ा हो रहा था कि किसी तरह से अध्यक्ष पद का चुनाव हो, और फाइनली अब जब चुनाव हो रहा है तो उस चुनाव को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले जरा आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है काफी अहम मसले पर। सीधे वहीं चलते हैं। Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister will separately meet the Prime Minister of Japan, His Excellency Mr. Fumio Kishida, during the visit. That's the short announcement I had for the evening. Okay, queries, questions? Okay, we'll start with you since I saw you first, one by one. Sir, Meghna from Daily News. Sir, there have been reports of Indians stuck in Myanmar who have fallen prey to criminal groups. What's the status? How many people have been rescued? And any update on the situation? Anybody else has queries on this topic? So maybe the other topic later on. Maybe this one because somebody else had something else. No. Okay. Look, on this topic, as I said, there are. It's a little complicated because it's. You mentioned about Myanmar. Let me just give you a sense of what we know. We are aware that some fraudulent IT companies actually, they appear to be engaged in digital scamming and forged crypto activities, and they seem to be operating through agents in Dubai, Bangkok in India, are recruiting Indian workers on the pretext of employment opportunities in Thailand usually. What we are hearing is in the IT sector there. The workers are lured by social media advertisements of highly lucrative data entry jobs in, as I mentioned, in Thailand. Unfortunately, these workers are then taken illegally across the border into the Myawaddy area of Myanmar. And that area, as you know, is difficult to access due to the local security situation. Nevertheless, thanks to the efforts of our missions in Yangon and in Myanmar and in Thailand, we have been able to facilitate the rescue of some of these victims from captivity or forced labor. And we are trying to help others. We would like to urge Indian nationals to exercise restraint, extreme caution, I would say, before taking up such job offers. It may also be mentioned here that the visa on arrival scheme in Thailand, which allows you to get entry into Thailand, does not permit employment. So if somebody is offering you such an opportunity, that is illegal. Our embassies in Thailand and Myanmar have issued advisories in this regard. Please follow them. We have also taken up this matter both with the governments of Thailand as well as Myanmar. As to your specific query of how many, look, this is difficult to say. 32 people have certainly been rescued or helped out of where they were. Remember, this is in a remote part of the country where there is difficult access. I think, I don't have exact number, I would say maybe 80, 90 odd people maybe total, so out of 32, maybe another 50 odd people our embassies are in contact with, but maybe a little more or less because some of it is hearsay from third-hand sources. That's the number we have broadly, but I don't want to comment on the exact numbers because that's still an evolving thing, but at least 32 have come out of that. That's broadly what I had to say. Sorry, any other, so many questions suddenly. Okay, go ahead. Maybe I'll start with this. I just saw you after that. Yeah. This is Reza from the Hindustan Times. This is regarding the PM's visit. Is there any likelihood of a bilateral meeting with the Sri Lankan president, who is also going to be in Tokyo at around that time? For Tokyo? Yeah. Okay. Yeah, sure. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. There have been instances of attacks on Indians in Leicester and then in Birmingham. What is being done? EM has already made a statement. Okay. Sorry, I thought your hand was okay. Sir Siddhant from Vion. There have been, of course, reports of Khalistani referendum, so-called Khalistani referendum, taking place in countries like Canada. Any reaction to that? What the Indian government or the consulate or mission has been doing on that? Pranay, I'll come to you in a second. So, two things. One, if I may add to the question regarding the
incidents in Birmingham and Leicester. तो क्या इस बारे में भारत सरकार ने अपनी कुछ चिंता जताई है ब्रिटिश सरकार के साथ, जिस तरीके से बर्मिंघम के अंदर मंदिर का घेराव किया गया था, और अभी सिक्योरिटी को लेकर क्या कोई कंसर्न है? दूसरा सवाल सर इस यूक्रेन सिचुएशन को लेकर है। रशिया ने जिस तरीके से पार्शियल मोबिलाइजेशन को ऑर्डर किया है और रेफरेंडम किया जा रहा है उस इलाके के अंदर, इंडिया का व्यू क्या है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी राष्ट्रपति पुतिन के साथ समरकंद में। Sir, times now. We have seen the incident in Leicester, and then the whole thing appears to be spreading. Birmingham has been next. What is the understanding of the Indian government on this? Who is responsible for this? And how helpful has the British security authorities, the apparatus, been on with this? And how are you interacting with the British government through the Foreign Office, through the Home Office? Could you tell us a little, please? Let me try to answer some of these questions. Reza, on the issue of bilaterals, still too early. I've just announced the visit. We don't even know who all finally are going to be there. I understand that the Japanese government has today indicated some list of leaders who would be there, but I don't even know there'll be enough time, because it will be a very short visit. If there is, as and when, we will come back to you on that. On Siddhant, your query was on the issue of the Khalistan referendum. Look, so-called this referendum, or so-called Khalistan, whichever way, basically we would term it as a farcical exercise. A farcical exercise was held by the extremists and radical elements supporting the so-called Khalistan referendum in Canada and elsewhere, I think. The matter has been taken up with the Canadian authorities through diplomatic channels. The government of Canada has reiterated that they respect the sovereignty and territorial integrity of India, and that they will not recognize the so-called referendum which is taking place in Canada. However, we find it deeply objectionable that politically motivated exercises by extremist elements are allowed to take place in a friendly country. You're all aware of the history of violence in this regard. And the government of India will continue to press the government of Canada on this matter. जी मैं उतना रूपांतरण कोशिश करता हूँ। जे कनाडा में जैसे तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम या जनमत संग्रह जिस तरह से कह लें का समर्थन करने वाले ये चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों द्वारा एक नकली अभ्यास आयोजित किया गया था, अभी चल रहा है, सुन रहे हैं। इस मामले को राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैनेडियन अथॉरिटीज़ के साथ उठाया गया है। कनाडा सरकार ने दोहराया है कि वो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं और वो तथाकथित रेफरेंडम को मान्यता नहीं देंगे जो कनाडा। तो विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस वार्ता इस वक्त हो रही थी और इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। बहरहाल शुरू करते हैं आज का हमारा एक कार्यक्रम 5 की पंचायत, जिसमें आज का जो अहम मुद्दा है वो है 22 सालों के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। और अब उस चुनाव को लेकर लगातार रार एक तरीके से कायम है। अशोक गहलोत अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी से मिले हैं और उनसे मिलने के लिए वो भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचे। मिलने के बाद उनका एक बयान भी सामने आया कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर जो अभी घमासान चल रहा है उसको लेकर उनका जो मामला है, उनका जो मुद्दा है वो अभी भी बरकरार है। यानी वो अपनी बात पर कायम है कि कोई भी इस जो चुनाव है उसमें भागीदार बन सकता है और यह नियम लागू नहीं होता। लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो इस वक्त मैदान में आ गए हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है अध्यक्ष तो राहुल गांधी को ही बनना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि मैं भी मैदान में आऊंगा। जरा टाइमलाइन पहले देख लेते हैं। आज जो अलग अलग बयान आए उसमें सुबह से अब तक, क्योंकि लगातार खबर बदल रही है, लगातार पल पल खबर बदल रही है कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर, तो आज सुबह से अब तक क्या हुआ जरा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आज अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अशोक गहलोत पहुंचे और उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। आज का वो दिन था जिसमें कि अधिसूचना जारी होनी थी। एक व्यक्ति एक पद पर अभी भी असमंजस बरकरार है कि आखिर क्या होगा इस मुद्दे पर। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं
और अध्यक्ष का पद संगठन नहीं बल्कि विचारधारा का पद है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, उन्होंने ये बात सामने कही, अध्यक्ष का पद संगठन का नहीं विचारधारा का है। धैर्य रखिए, कुछ ही समय में सब पता लग जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो उन्होंने ये जवाब दिया। उसके बाद कल अब सोनिया गांधी से मिल सकते हैं राहुल गांधी। अपनी यात्रा के दौरान कल दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद परसों, क्योंकि नामांकन शुरू होने वाला है, तो कल मुलाकात हो सकती है। अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन नेहरू गांधी परिवार की भूमिका नहीं बदलेगी। ये एक बड़ा बयान आज आया है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता का, उनकी तरफ से बनाया है। पार्टी संविधान में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ये मधुसूदन मिस्त्री की तरफ से एक व्यक्ति एक पद को लेकर बयान आया, और ये मधुसूदन मिस्त्री कोई और नहीं है बल्कि चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका सारा दारोमदार इन्हीं के कंधों पर है। अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, ऐसा अशोक गहलोत की तरफ से बार बार कहा गया, और आज भी मुलाकात के बाद ये बयान आया। जब जब गांधी परिवार से बाहर अध्यक्ष बना है, पार्टी में बिखराव हुआ है। प्रमोद तिवारी, एक और नेता, उनकी तरफ से कहा गया कि अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनना चाहिए वरना बिखराव हो सकता है। तो ये उनकी तरफ से बयान आया। अब जरा हम उस पर नजर डालते हैं, उदयपुर का नव संकल्प, यानी जिस चिंतन शिविर के सिद्धांतों की इस वक्त सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो क्या थे। संगठन में एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत लागू किया जाएगा। ये बात उदयपुर के इस शिविर में आई। एक परिवार एक टिकट का नियम भी लागू होगा, यानी परिवारवाद, जिसको लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा मुद्दा बनाती रही कांग्रेस पर, उसको लेकर यह भी बयान आया। 5 वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा, और अगर 5 वर्षों से ज्यादा समय तक रहेगा तो उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो निर्धारित किए गए। नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अभी तक ये भी सवाल उठाते रहे हैं वो नेता जो निकल कर गए हैं पार्टी से कि किन लोगों को आखिर मौका दिया जाता है, तो ये भी एक बात थी। यदि परिवार में कोई दूसरा सदस्य राजनीतिक तौर से सक्रिय है तो 5 साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही कांग्रेस टिकट के लिए वो पात्र माना जाएगा। ये सारी बातें उदयपुर में तय हुई थी। 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए पार्टी के 50% पद जो है वो आरक्षित रहेंगे, यानी उन्हीं को मिलेंगे, और ये युवाओं को आगे लाने के लिए पार्टी की एक योजना के तहत हुआ था। तो ये तमाम वो नव संकल्प रहे जो कि उदयपुर के जो चिंतन शिविर हुआ उसमें रहे। तो ये तो वो तमाम बातें थी जिसको लेकर हम आज अपनी चर्चा में जरूर बात करने की कोशिश करेंगे। अब जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं कांग्रेस के नेताओं की, जो राहुल गांधी, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और तमाम नेताओं के पक्ष और विपक्ष में नजर आ रही हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा कि गांधी परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। जब जब गैर गांधी परिवार से आया, कांग्रेस में बिखराव हुआ है। वक्त की आवश्यकता गांधी परिवार है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। मुख्यमंत्री हर 5वें साल चुनाव होता है। नॉन गांधी अध्यक्ष की बात, क्यों, किसने रोका था चुनाव लड़ने से? नॉन गांधी को चुनाव लड़ने से किसी ने रोका था क्या? मैं कह रहा हूँ नॉन गांधी अध्यक्ष होंगे तो आज राहुल जी यात्रा लेके निकल रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पार्टी के ऊपर रहेगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी? बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। तो भूमिका क्या रहेगी? किनकी? गांधी परिवार की भूमिका क्या रहेगी? जो अभी तक रही है, सेवा की। न्यूज़ में जो 2 नाम चर्चा में जो आ रहे हैं, उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के MLA, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची। तो चयन इन दोनों में बड़ा सरल और स्पष्ट है। आज के हालात को देखते हुए जिस प्रकार से देश के सामने जो चुनौतियां हैं, पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं,
उन सब का सामना करने की क्षमता वो राहुल गांधी जी में है और राहुल गांधी जी को ये चुनौती स्वीकार करना चाहिए। ऐसा बात लग रही है कि अब की बार चुनाव होगा और होगा तो फिर देखेंगे क्या परिस्थिति बनती है, या एक कोई कंसेंसस कैंडिडेट सब लोग बड़े नेता मिलकर रखते हैं, क्या करते हैं देखते हैं। हम लोग तो कोई इसमें भागीदार है नहीं इन निर्णयों में, तो जब पता चलेगा निर्णय क्या बनता है तब अपनी अपनी तरह से हम लोग निर्णय लेंगे। चुनाव होगा तो हम किसको वोट देना चाहते हैं वही हमारा अधिकार है, और चुनाव नहीं होगा तो आशा करेंगे कि जो ऊपर के नेतृत्व है वो मिलकर एक अच्छा कैंडिडेट दे हमें। तो समय का इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए, यही बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। समय का इंतजार कीजिए, यही बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। अब ये समय कब आएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं जबकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। एक तरफ मनीष तिवारी भी कह रहे हैं कि वो भी अपने समर्थकों से मिलेंगे, वो भी अपना दावा ठोक रहे हैं, मैदान में आने को तैयार है। और इस बीच जिस बात पर अब सबकी निगाहें लगी हैं वो है कि इस सब घमासान के बीच आखिरकार राजस्थान में क्या होने वाला है। राजस्थान में कुर्सी आखिर अगर अशोक गहलोत के हाथ से जाती है और वो अध्यक्ष बनते हैं तो फिर वो कुर्सी किसके हाथ में होगी, ये एक अहम मसला है जिस पर चर्चा करनी बेहद ही जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे साथ खास पैनल मौजूद है मेहमानों का, उन सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसे भी नेता हैं जो कि कांग्रेस से बरसों से जुड़े हुए हैं। राशिद अल्वी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके साथ हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह मौजूद रहेंगे बात करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर ये जो सब घमासान है ये कहां पर थमता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा राजकुमार जी, जो कि पूर्व मंत्री एमएलए कांग्रेस की तरफ से रहे हैं और हाल ही में पार्टी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, बहुत सारे मुद्दे उनकी तरफ से भी रहे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही हेमंत अत्री, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के सभी मामलों पर वो पैनी नजर रखते हैं और कांग्रेस के ये सब जो उठापटक चल रही है और हम कहेंगे कुर्सी का खेला जो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है, उनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को राशिद अल्वी जी से परिचय कराती हूँ। राशिद अल्वी जी के पास हम सीधे चलते हैं। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 की पंचायत में। और बरसों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अब तमाम पदों पर रहे, मंत्री से लेकर आपने कांग्रेस को बारीकी से देखा। सबसे पहले तो मैं उस बयान पर आज नजर ले जाना चाहती हूं जो दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आता है। राशिद जी, वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने लेकिन नेहरू गांधी परिवार की जो भूमिका है वो नहीं बदलेगी। ये क्या संकेत दिया है दिग्विजय सिंह जी ने? देखिए, एक तो कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव मीडिया की दिलचस्पी का एक केंद्र बन गया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, इसलिए हर नेता अपने अपनी बात रख रहा है, इसमें कोई ताज्जुब की बात होनी नहीं चाहिए। जहाँ तक गांधी परिवार का ताल्लुक है, गांधी परिवार का इस देश में लंबा सेक्रीफाइसेस का इतिहास रहा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तो उनका जो रोल है वो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं बहुत बार कह चुका ये बात। राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने या ना बने, उनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस के अंदर, देश के अंदर कम नहीं होने वाली है। अटल बिहारी वाजपेयी अध्यक्ष नहीं थे, क्या उनकी हैसियत कम हो गई थी? नरेंद्र मोदी आज अध्यक्ष नहीं पार्टी के, क्या उनकी हैसियत कम हो गई है? अध्यक्ष पद पार्टी चलाने का संविधान के मुताबिक एक तरीका है, लेकिन जो लीडरशिप है, राहुल गांधी कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक कहीं चले जाएं, हजारों लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है। किसी भी लीडर के लिए ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, उसकी बात सुनने के लिए कितने लोग आते हैं, उसको कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग जानते हैं। तो कांग्रेस में इनर डेमोक्रेसी है, चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं, जो लड़ना चाहे लड़े, जो वोट जिसको पड़ेगा वो जीत जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा।
राशिद जी, जितना आसानी से आप मामला समझा रहे हैं उतना आसान लग रहा है क्या कांग्रेस का ये अध्यक्ष पद का चुनाव? क्योंकि आपने जो बात कही कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी रहे लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी हैसियत एक अलग है, तो ये कोई कांग्रेस के अध्यक्ष पद और राहुल गांधी से कैसे तुलना इस वक्त मौजूदा हालात में की जा सकती है बीजेपी अध्यक्ष या नरेंद्र मोदी की? मैं ये जानना चाह रही थी राशिद जी, क्योंकि राहुल गांधी उनके नेतृत्व में जब रहा पूरी पार्टी का दारोमदार, तो पार्टी कहां पर पहुंची है? आपकी पार्टी के आपके साथ के दिग्गज लोग कहां चले गए हैं? बीजेपी में तो ऐसा कुछ घमासान दिखाई नहीं दे रहा है, बीजेपी का तो विस्तार ही लगातार हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी और बीजेपी अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर ये तालमेल कुछ जम रहा है क्या? देखिए, पार्टी का अध्यक्ष एक अलहदा चीज है, लीडरशिप एक अलहदा चीज है। बीजेपी के अंदर कौन अध्यक्ष बने कौन ना बने, नाम वो नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव जीतते हैं, अटल जी के नाम पे जीतते थे। और जहां आप कह रही हैं कांग्रेस की हालत खराब हो गई है, मैं भी मानता हूं आज कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन किसी एक आदमी को देश देना उचित नहीं है। अटल जी और अडवाणी जी दोनों बड़े नेता थे, भारतीय जनता पार्टी की 2 पार्लियामेंट की सीटें आई थी। हमारा हाल तो ऐसा नहीं हुआ ना, बीजेपी के पास तो 2 सीट, अटल जी हार गए थे चुनाव, सबको छोड़ दीजिए। तो राजनीति में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ये गलतफहमी अगर किसी को है कि हम सत्ता में हैं तो हमेशा रहेंगे, वो गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। आज बीजेपी है, कल हम आ सकते हैं। जिस तरह हम थे, हमने एक लंबे अरसे तक हमारे पास ताकत थी, आज नहीं है, आज कमज़ोर हैं। लोकतंत्र में ये फैसला जनता करती है, जनता जिसको चाहे बिठाए, जिसको चाहे हटाए। तो इस बात पे किसी को गुमान नहीं होना चाहिए कि आज कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई है, बीजेपी मजबूत है। राजनीति में लम्हात, एक वाकया, एक इंसिडेंट ऊपर पहुंचा देता है और ऊपर से नीचे ले आता। राजनीति का इतिहास उठा के देखिए, मैं 10 मिसालें आपको दे सकता हूं कि एक दिन के अंदर राजनीति बदल जाती है। ठीक है, आपकी बात सही है राशिद जी, एक दिन के अंदर राजनीति बदल जाती है, लेकिन क्योंकि आपने कहा कि मीडिया का पूरा अटेंशन कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव पे लगा है, तो क्यों ना लगे 22 सालों का एक लंबा अंतराल। और इसीलिए जो आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की राशिद जी बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में मनीष तिवारी का एक सूर देखने को मिल रहा है। पार्टी के आधे दर्जन से ज्यादा नेता तो अब तक सामने आ चुके हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए, वरना जब जब गांधी परिवार से निकलकर पार्टी का कोई अध्यक्ष हुआ है तो बिखराव हुआ है। ये प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के और नेता कह रहे हैं, अभी भी सारे आपके राज्य के जो नेता हैं वो दिल्ली आकर के यही बात कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार से न जाने कितने अध्यक्ष रहे हैं। कोई एक, सोनिया गांधी से पहले कौन अध्यक्ष था, आज़ादी के बाद कौन अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन अध्यक्ष था, लगातार बदलते रहे हैं। गांधी परिवार की अपनी हैसियत है, अपनी जगह रहेगी। अध्यक्ष राहुल गांधी बने, सोनिया गांधी बने या कोई और बने, वो कलहदा चीज़ है, उससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने कही कि मीडिया का कांग्रेस का इलेक्शन केंद्र बन गया है, मैं आपसे कहूँगा आपको केंद्र बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। एक आदमी तय कर लेते हैं, वही अध्यक्ष बन जाता है। हमारे यहाँ देखिए ना क्या तमाशा हो रहा है, जो चाहे लड़े, जिसको वोट पड़ेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे वो जीत जाएगा। जिसको 50% +1 वोट पड़ेगा वो चुनाव जीतेगा अध्यक्ष पद का। ऐसा नहीं है 10 लोग खड़े हुए जिसको मेजॉरिटी हुई वो जीत गया। 50% पड़ना चाहिए। आप बीजेपी पे क्यों नहीं उंगली उठाती कि आप खुल के क्यों नहीं चुनाव करते, पर्दे के पीछे तय कर लेते हो, वो अध्यक्ष बन जाता है। इस तरीके से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी नहीं होता है, वो मुद्दा बनना चाहिए। ये तो लोकतांत्रिक तरीका है जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है। मुद्दा राशिद जी, अपने ये मुद्दा मेरे ख्याल से इसलिए नहीं बनता है जो आपने बीजेपी का मुद्दा उठाया कि बीजेपी में जब भी अध्यक्ष पद का, जो आपने कहा कि अगर ऊपर से भी नाम आता है और सब तय करते हैं, लेकिन इस तरह के से सड़कों पर जो आपने खुद शब्द का इस्तेमाल किया, तमाशा, वो देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए उस तरफ कोई निगाह नहीं दौड़ाता है कि बीजेपी का अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अगर तय हो गया है पार्टी में
और सभी राज्यों की तरफ से तय हो जाता है तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़े होते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो आप खुद ही देखिए जिस तरह से हालत है। खुद राहुल गांधी कह रहे हैं समय का इंतजार कीजिए। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अशोक गहलोत एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर खुद दोनों तरफ रहना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को नहीं मिलती ना वहां पर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। बीजेपी में ये सब देखने को नहीं मिलता है। मेरी बात याद रखिएगा आप, न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां तानाशाही होती है वहां किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो सवाल उठा ले। सवाल वहीं उठता है जहां लोकतांत्रिक मर्यादाएं होती। मैं दुनिया के बहुत सारे तानाशाहों से मिला हूं। मैं सद्दाम हुसैन से भी मिला हूँ, मैंने कद्दाफ़ी से भी मिला हूँ, मैं ईरान के हेड से भी मिला हूँ, मैं सीरिया भी गया हूँ। और मैंने देखा है कि जब तानाशाह होता है तो उसके क्या हालात होते हैं। हम इजिप्ट गए थे, प्रमोद महाजन हमारे लीडर थे डेलीगेशन के। 2.5 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा था और हमारा ऑफिशियल डेलीगेशन था भारत सरकार का। 2.5 घंटे के बाद हमसे मुलाकात हुई थी। तो मैं जहां तानाशाही होगी वहां इसी तरीके के हालात होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी की हैसियत ये आपने नहीं है एक बड़ा कि वो इल्जाम उंगली लगाया उठा ले। क्योंकि तानाशाही का जो मुद्दा है वो कैसे बीजेपी पर लागू होता है, जरा मैं जानने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि अगर आपकी कोई पद्धति है कांग्रेस पार्टी की, तो बीजेपी की भी एक पद्धति है चुनाव लड़ने की और अध्यक्ष चुनने की। तो दोनों पद्धतियां अगर संविधान में अलग अलग दी गई हैं पार्टियों के, तो उस पर सवाल इस तरह से खड़ा करना। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राशि जी, क्योंकि आपने मुझसे ये कहा था कि आप डिबेट में शामिल नहीं होना चाहते मेरे साथ। बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनसे जानना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राशि जी इस हमसे बातचीत करने के लिए। तो आरपी सिंह जी, मैं आपको अब डिबेट में लाना चाहूंगी। जो बात यहाँ पर राशिद जी ने कही, तानाशाह बीजेपी पार्टी, जिसमें कि आपके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो ऊपर से थोपा जाता है। और ये सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, बल्कि पार्टी के, कांग्रेस के अलग अलग लोग भी हमेशा बीजेपी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर। पिछले 44 साल में 37 साल एक परिवार कांग्रेस पे अध्यक्ष पद पर रहता है और पार्टी चलाता है। पिछले 44 साल में बीच में अंतराल ऐसा रहा जब कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है वो उस समय सक्षम नहीं था अध्यक्ष पद के लिए, या पार्टी राजनीति में सक्षम नहीं था, इसलिए वह नहीं रहा। ये तो हमें याद है सीताराम केसरी जी को किस प्रकार से उठाकर बाहर फेंका गया था, और किस प्रकार नरसिम्हा राव जी की जो देह थी वो पार्टी कार्यालय में नहीं आने दी गई थी। तो ये तो तानाशाह कौन है, कितना है, ये सबको जानकारी है। और शायद इनको जानकारी नहीं कि हमारे यहाँ नीचे समिति से लेकर, मंडल से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, स्टेट से लेकर फिर नेशनल इलेक्शन होते हैं। और वो प्रोसीजर अभी हमारे यहाँ शुरू होगा, हर बार होता है। हाँ, हमारे यहाँ क्योंकि कई साल ये नहीं होता कि कई साल तक कोई इंतजार करना पड़ता है, भाई यही अध्यक्ष चलेगा या इसके घर वाले अध्यक्ष चलेंगे, अच्छा जी नड्डा जी अध्यक्ष हैं तो अब नड्डा जी के बेटा अध्यक्ष होगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए इनके यहाँ जो फूट है, या इनके यहाँ जो लोग बार बार हल्ला करते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि उनका कोई भविष्य है नहीं, उनको अपना कोई भविष्य दिखता नहीं। इसलिए अलग अलग ढंग से कभी G23 आता है, कभी आज़ाद साहब एक चिट्ठी लिखते हैं, कभी शेरगिल जैसा एक जवान 25-30 साल का, 30-35 साल के होंगे, वो भी एक चिट्ठी लिखते हैं, वो भी नाराज़गी प्रकट करते हैं। और कभी हिमंता को सच बताना पड़ता है किस प्रकार से राहुल गांधी को मिलने से पहले उसको कुत्ते को मिलना पड़ता था और कई घंटे इंतजार करना पड़ता था क्योंकि अपने कुत्ते के साथ व्यस्त रहते। तो ये परिस्थितियाँ कांग्रेस के अंदर, हमारे यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है। हमारे यहाँ हर 3 साल बाद चुनाव होता है। अभी जनवरी के महीने के अंदर चुनाव होगा, आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे यहाँ ये तय नहीं है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा, किसी को जानकारी नहीं होती कौन अगला अध्यक्ष होगा। प्रोसेस के अंदर, प्रोसीजर के अंदर नीचे से मंडल के, समिति से, मंडल से, डिस्ट्रिक्ट से, जिले से, हर लेवल पे चुनाव होते होते एक कोलिजियम बनता है, वो तय करता है कि हमारे यहाँ कौन अध्यक्ष होगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, इस बात को आज आप इस मंच से जरा साफ कर दीजिए। ये एक पद एक व्यक्ति, ये सिद्धांत है भी, या किसी एक व्यक्ति के लिए इसको चेंज कर दिया जाएगा, या ये सिर्फ ऐसे ही नव संकल्प के तौर पर सामने आए, लेकिन कोई रूल ऐसा है नहीं पार्टी में? क्योंकि कोई नेता कह रहा है, कोई कह रहा है लागू नहीं होगा, अशोक गहलोत कह रहा है ये अलग ही मामला है। तो ये है क्या, ये समझा दीजिए जरा। एक पद एक व्यक्ति की जो प्रक्रिया है पार्टी के अंतर्गत, तो यदि कोई भी व्यक्ति 5 साल तक सेम पद पर रहा है तो उसमें परिवर्तन की संभावना है। लेकिन सरकार और पार्टी 2 अलग अलग
चीज़ें हैं, तो दोनों में अपनी अलग अलग चीज़ें होंगी, उसके हिसाब से तय किए जाएंगे। पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति, एक ही व्यक्ति दो पद पे नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो अभी सिंह साहब ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। 1947 के बाद से अभी तक 18 जो है अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष पद रहा है, जिसमें 5 गांधी परिवार से और 13 लोग बाहर से रहे। और संजोग की बात है कि वो जो 5 गांधी परिवार से जब रहे, कांग्रेस पार्टी अधिकतर समय में चुनाव जीत करके आई और देश के लोगों ने भी उस अध्यक्ष पर भरोसा जताया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा को हो सकती है आपत्ति, मुझे भाजपा से कोई लेना देना नहीं। जहां तक बात है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, आपने देखा किस तरह कांग्रेस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक प्रक्रिया चली और चुनाव की प्रक्रिया अब आपके सामने है, जिस पर आप बहस कर रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पार्टियों के अंदर भी एक राजनीतिक प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और उस पर बहस होनी चाहिए, और सिर्फ मुख्य पार्टी पर नहीं। राहुल गांधी जी जब यूथ कांग्रेस का चुनाव, उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रभार संभाला था 2009, याद है मुझे, पहला जब प्रभार संभाला तो हम सब लोग साथ थे और मैं उस समय चुनाव का ही अधिकारी था, PRO जो हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ संगठन में है, और यूथ कांग्रेस में भी हम लोगों ने चुनाव कराए, वो निरंतर वो चल रहा है। राहुल गांधी जी एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की बात करते हैं। अभी तो 22 साल लग गए ना अध्यक्ष का चुनाव होने में। देखिए और अब जब चुनाव 2024 के नजदीक है और बीजेपी लगातार हमलावर है आपके ऊपर, परिवारवाद को लेकर, रीमा जी, बीजेपी तो हमलावर रहेगी। बीजेपी तो जब चुनाव होगा तब उसको दिक्कत है, जब सभी लोग शांतिमय ढंग से कोई बात रखेंगे तब दिक्कत है। उनको गांधी परिवार से दिक्कत है, उनको कांग्रेस के बजाय उनको अपने चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार में वो है तो उनसे जनता जो बात पूछ रही है उसके जवाब के बदले वो कांग्रेस के तरफ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के अंदर का ये चुनाव हो रहा है, भाजपा को जितनी देखनी है देखे, लेकिन इस सच्चाई को भी स्वीकारे कि क्या 1982 से आज तक लगभग 40 वर्ष का होने वाली है भाजपा भी, क्या भाजपा में कब कैसा चुनाव हुआ था जिस पर इस तरह डिबेट कभी किए गए होंगे? आपका भी एक लंबा कैरियर है पत्रकारिता का, आपने कभी देखा? और मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं, 10 सेकंड, भाजपा सिर्फ नहीं, और तो सब जानते हैं कब डिबेट आपने किया होगा, नहीं किया होगा कभी। और मैं मानता हूं केजरीवाल जी, मैं कहता हूं, सुनिए ना, मैं कहता हूं केजरीवाल जी, इस तरह का माहौल कभी भाजपा के अध्यक्ष पद के चुनाव में दिखाई ही नहीं दिया। आप उत्तर क्यों दे रही हैं? आप मत दीजिए ना, आपने नहीं, चुनाव होता है, चुनाव होने की प्रक्रिया एक होती है और सब पार्टियों में होती है। जिस तरह इनके यहाँ चुनाव होते हैं उसी तरह हमारे यहाँ भी लगातार चुनाव होते रहे, पहले भी हुए और अभी भी हुए हैं। ममता बनर्जी जी भी होंगी अध्यक्ष अपने पार्टी की, केजरीवाल साहब भी अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे लोग अध्यक्ष हैं। उन पार्टियों में भी कभी चुनाव की प्रक्रिया का इस तरह से आपने यहाँ पे डिस्कशन डिबेट किया हो? मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हमारे अंदर एक चुनाव की प्रक्रिया है, और मैं पुनः कहता हूं पार्टियों के अंदर डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होनी चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जो लोग दूसरे को दिया दिखा रहे हैं, दीप दले अंधेरा वाली बात करके आंख बंद करने की प्रक्रिया में ना आए, वो भी आए और देश को बताएं कि उनके यहाँ चुनाव की ईमानदारी से प्रक्रिया कब जारी हुई। चुनाव आयोग के कहने पर एक फॉर्मेलिटी करना और इस तरह से आपस में चुनाव करके कैंडिडेट आए, फॉर्मेलिटी कैसे कह सकते हैं? बीजेपी का अपना संविधान है, कौन सा बीजेपी अपने हिसाब से चलेगी ना, कोई भी चुनाव आयोग का संविधान है, चुनाव आयोग का संविधान है। चुनाव आयोग राष्ट्रीय पार्टी जो भी है वो अपना चुनाव कराने की एक प्रक्रिया है, उसके तहत उसको आना पड़ता है। अब पार्टियों के अंदर जो चुनाव की प्रक्रिया है वो सबके यहाँ वही प्रक्रिया है। आरपी सिंह जी, देखिए मैंने इनकी पार्टी में इंटरनल चुनाव कैसे हो, मैंने ये प्रश्न उठाया कि इनके यहाँ डेलीगेट्स कैसे बने, इनके डेलीगेट्स को लेकर भी इनके यहाँ के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके डेलीगेट्स ठीक नहीं बने, वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। हमें इनका इंटरनल इशू है, परंतु आपने जो मूल बात कही कि पिछले 22 साल के अंदर कितनी बार चुनाव हुआ ये सब बता दीजिए, एक बात। और दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ पार्टी परिवार के बाहर कब गई, ये पहली बार शायद हो सकता है कि कोई रिमोट कंट्रोल का सिस्टम, क्योंकि आज एक देश में नैरेटिव खड़ा हो गया परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके चलते शायद आपको मजबूरी में कुछ करना पड़े। अन्यथा कोशिश हमेशा ये रही है कि हम परिवार, जब राहुल गांधी हटे तो सोनिया गांधी जी को देखे कि आप चलाइए थोड़े दिन, आप जब तक चला सकते चलाइए, फिर हम बाद में देखेंगे। जो लेकिन आरपी सिंह जी, अगर अशोक गहलोत बनते हैं तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? अगर शशि थरूर बनते हैं तो वो तो परिवार से अलग हुए ना, उनका तो कोई परिवार से नाता नहीं है। हमें इनकी तरफ से कोई बने, हमें कोई, हमारे को कोई एजेंडा नहीं। तो ये मुद्दा बंद हो जाएगा ना फिर परिवारवाद का जो आप आरोप लगाते हैं? हमारी तरफ से अशोक गहलोत बनते हैं तो, अगर अशोक गहलोत
अध्यक्ष के नाते से काम कर पाएं और उनको काम करने की छूट मिले काम के अध्यक्ष के नाते से, ना कि जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और वैसे ही अध्यक्ष बनेंगे तो ठीक है। अब देखिए मैंने अच्छी बात नहीं अजय, मैंने आपको टोका नहीं ना, मैंने आपको बीच में अच्छी बात नहीं अच्छी, हम अच्छी बात में 10 बार टोकता तो वो रिमोट कंट्रोल से चलें, अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलानी है चलाएं, परंतु जो मूल मुद्दा है वो ये है क्या एक देश की जिस पार्टी को अंग्रेजों ने खड़ा किया वो क्या लोकतंत्र प्रक्रिया में चलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रह सकती है और भ्रष्टाचार से दूर रह सकती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए डॉक्टर। पहले तो इस देश से इसी पार्टी ने अंग्रेजों को भगाया। जब अंग्रेजों को लोग यहाँ पे रखना चाहते थे, हम भारत छोड़ो की बात करते थे और ये अंग्रेजों जोड़ो की बात करते थे। ये लोग ये बात न करें, कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करने से पहले अपना इतिहास उठा ले कि किस तरह से देश को इन्होंने अंग्रेजों के साथ जुगलबंदी करके देश को कहीं ना कहीं प्रयास करते थे कि स्वतंत्रता देश को कहां पहुंच गए? नहीं अभी बोला ही नहीं उन्होंने देश की मैंने ये गलत बोला कि मैंने ये गलत बोला कि कांग्रेस अंग्रेजों ने बनाई थी। मैंने गलत बोला क्या? अंग्रेजों ने बनाई नहीं, अंग्रेजों ने बनाई थी और अपने हित साधने के लिए बनाई गई थी। के लिए यही तो गलत, अंग्रेजों ने बनाई अपना हित साधने के लिए और उन्होंने अपना हित, अरे मैंने खूब पढ़ा इतिहास, आपसे अच्छा पढ़ा है, और अपना हित साधने के लिए बनाई थी। को भी आप यही कह रहे हैं, मैंने कहा कांग्रेस ने बनाई थी अपना हित साधने के लिए, अपना हित साधने के लिए बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के साथ थे, आप यही कहना चाहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को आपने कितनी मान्यता दी? आपने तो सुभाष चंद्र बोस को मान्यता नहीं की, आपने सरदार पटेल जी को मान्यता नहीं दी, आपने कब मान्यता दी? आपने भगत सिंह जी को मान्यता नहीं दी, आपने तो भगत सिंह जी को मान्यता नहीं दी। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने चंद्रशेखर आजाद को मान्यता नहीं दी, आपने किसको मान्यता दी? कांग्रेस पार्टी थी और गांधी जी थे, आप यही कहना चाहते हैं? मैंने ये कहना चाहते हैं, आप कह रहे हो, ये आप कह रहे हो, यही आपका गांधी जी का तो नाम ही नहीं लिया, मानसिकता है और यही आपके संस्कार है जो अपेक्षा करेंगे अंग्रेजों के साथ कैसे आप कितना अरे प्यार गांधी जी का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया है। डॉक्टर अजय कहाँ नाम लिया है? चलिए मैं जरा हेमंत जी, ठीक है अंग्रेजों ने बनाई, ठीक है अच्छा ठीक है। कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है, पहली बार ये जो जिस अब देखिए आप कांग्रेस नहीं, ये बात तो सच है ना, ये बात तो सच है। ठीक है नहीं छोड़िए कांग्रेस या बिटली के कांग्रेस फर्क कितना ही। डॉक्टर अजय भाजपा कहाँ गई डॉक्टर है? अजय मैं आपको क्या भाजपा ये सावरकर वाली है मैं आपको वही बोल या रही हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली है या नहीं? बता दीजिए। यदि है तो ये भी बताइए कि मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया कि नहीं? सावरकर ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया कि नहीं? 6 बार क्षमा पत्र मांगा कि नहीं? पूरा देश जानता है आपके इस चरित्र को, पूरा देश देखता है। पूरे देश में ये बात है कि कैसे अंग्रेजों का आप दलाली कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैसे माफी मांग रहे थे और कैसे अंग्रेजों के साथ और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज के उन नायकों का विरोध करने का प्लान बना रहे थे। पूरा देश जानता है। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्लान बना रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर देश में, देश की आजादी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे रोका जाए और अंग्रेजों को कैसे मदद पहुंचाएगी, ये सब जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने काम किया। आप क्या बात कीजिएगा? आप लोग देश में अंग्रेजों का दलाली करते हैं, इतिहास है इसका और आप इतिहास। अरे सर इस तरह डिबेट नहीं होगी। डॉक्टर अजय एक मिनट, डॉक्टर अजय एक मिनट, नहीं मैंने उनको भी बोला, वो चुप हो गए। मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारा मुद्दा है आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव है, आप कहाँ मतलब 1947 और उससे पहले पहुंच गए? जा रहे हैं तो क्या क्यों जा रहे हैं? अंग्रेज कहाँ है अब देश में? आपने टोका इनको अंग्रेजों पर, मैंने दोनों को टोका। इतने पुराने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आज के युवा को, आज की जनता को इन बातों से अब कोई मतलब नहीं है। वो इतिहास सबने पढ़ा हुआ है और सबको पता है किस पार्टी का क्या इतिहास है। इसलिए अब मैं जरा हेमंत जी के पास जाना चाहूंगी। हेमंत जी, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी जो कल दी है आज वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आपने राजस्थान का भी जिक्र किया और आपने बताया कि राहुल गांधी, आपने सोर्सेज के हवाले से साफ कहा था कि राहुल गांधी नहीं बनने जा रहे। आज उन्होंने संकेत भी दे दिया और उन्होंने कहा कि ये विचारधारा का पद है, संगठन का पद नहीं। अब क्या लग रहा है, राजस्थान कहाँ जा रहा है अब? और राजस्थान में क्या पायलट की ताजपोशी होगी या अशोक गहलोत अपने किसी आदमी को बनाएंगे या खुद, जैसा कि वो कह रहे हैं मैं दोनों जगह रह सकता हूँ? नहीं रीमा जी, एक चीज मैंने कल भी कहा था, मैं आज फिर कहना चाहता हूँ। हाँ। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का इशू अभी ओपन है बिल्कुल, और जो बात राहुल गांधी ने आज स्पेसिफिकली इंडिकेट की है कैटेगरिकली कि एक व्यक्ति और एक पद रहेगा, उन्होंने ये इशारों में नहीं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया और यही उदयपुर के चिंतन का फॉल आउट था। नंबर 1। नंबर 2,
इसमें कल भी कोई शक नहीं था, आज भी कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत अगले कांग्रेस अध्यक्ष होने जा रहे हैं। अब इसमें इशू क्या है कि राजस्थान को कांग्रेस कैसे टैकल करती है। अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, जब वो मुख्यमंत्री हैं तो भी, और जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो उसके बाद उनकी ताकत कहीं ना कहीं और भी बढ़ जाएगी, हाईकमान के साथ उनकी इंटीमेसी और कम्युनिकेशन और ज्यादा बढ़ेगी। अब इशू क्या है कि क्या हाईकमान पंजाब वाला मिस एडवेंचर क्या राजस्थान में भी रिपीट करेगा? जिस तरीके से उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनसेरिमोनियसली रिमूव किया था, तो क्या वो उस तरीके से अनसेरिमोनियसली उसकी बात को ना मानते हुए अशोक गहलोत की, क्या वो सचिन पायलट को बना देंगे? और अगर सचिन पायलट बने तो क्या गहलोत उस सरकार को चलने देंगे, गहलोत या उनके समर्थक? बहुत सारे महत्वपूर्ण इशू हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा रीमा जी, ये बहुत ही प्राइम चैनल है हमारा, दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है। मेरी सभी मेहमानों से भी एक आग्रह है कि वो मुद्दे की बात नहीं, इधर उधर कंगारू चैनल ना बनाए। यहां पर मुद्दे की बात यह है बेसिकली कि एक राष्ट्रीय पार्टी जिसको हम तमाशा कह रहे हैं, हर एक चुनाव डेमोक्रेसी में तमाशा ही होता है, लेकिन उसकी गंभीरता को तमाशा कह के हम डाउनग्रेड नहीं कर सकते। जो राशिद किदवई ने कहा, मैं उससे सहमत नहीं। अभी आपने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का चुनाव देखा, इनिशियली 6 लोग थे, वो घटते घटते 2 पर आ गए, और 2 के बाद जब एक चुनाव जीत गया तो सारी पार्टी एक साथ हुई। तो क्या हिंदुस्तान में ये नहीं हो सकता है? बेसिकली हमें हेमंत जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। चुनाव पर बिल्कुल बहस होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में एक अजीबोगरीब चीज है ना, जिसको लेकर राशिद किदवई भी तमाशा कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जो एक तरीके से गांधी परिवार के अब तक नजदीकी माने जाते रहे, वो आके जब मिलकर आते हैं तब भी वो अभी भी अपने हाथ में राजस्थान की बागडोर भी रखना चाहते हैं, इसलिए तमाशा कहना पड़ रहा है कि ये क्या चल रहा है। इतना ज्यादा मोह, एक तरफ वो कह रहे 50 साल से मैं पदों पर रह चुका हूं, दूसरी तरफ अभी भी मोह जो है, रिमोट कंट्रोल नहीं जा रहा है हाथ से। रीमा जी, खेल को समझिए। जब कल वो दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से मिलने से पहले उनके क्या सुर थे? हाँ। उन्होंने कहा एक व्यक्ति एक पद नहीं, मैं तो कोई नॉमिनेट थोड़ी, वो हमें तो चुनाव लड़ के, जिस तरह कोई भी लड़ सकता है, दोनों पद रख सकते। ये मॉर्निंग का बाइट था उनका जो आपने दिखाया। उसके बाद जब शाम को आए तो उनका बुखार धीरे धीरे उतर गया। उन्होंने कहा कि विधायक तय करेंगे। हर पल सूचनाएं और जो बाइट्स हैं वो बदल रहे हैं। उसके बाद दिग्विजय सिंह बीच में कूद पड़ते हैं, वो कहते नहीं एक व्यक्ति एक पद। वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन हाईकमान से ही दिलवाया जा रहा है गहलोत को। सोनिया गांधी ने खुद नहीं कहा, वो जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ यात्रा में, आपको भी पता है, तो दिग्विजय सिंह का कहना संदेश स्पष्ट था। उसके बाद आप देखिए, जो बात कहना चाह रहा हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव गौड़ा को आपने दिखाया, वो शशि थरूर के बारे में क्या बोल रहे थे? अरे भाई, वो सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, आप अपना ही जनाजा क्यों निकलवाना चाहते हो? जब कांग्रेस पार्टी का एक सिद्धांत है, एक तरीका है चुनाव लड़ने का, मैं तो कहता हूं 10 लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, और उस संविधान के अंदर जिसके 50% से ऊपर वोट आएंगे वो बन जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन तो सवाल हेमंत जी हाँ यही है, और राजकुमार जी आपसे मेरा सवाल यही है, क्योंकि अगर 10 लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लग तो यही रहा है ना, जिस तरह से पूरे भारत से जो बाइट्स निकल कर आ रही हैं और बयान निकल कर आ रहे हैं, जिस पर आशीर्वाद होगा गांधी परिवार का अध्यक्ष वही बनेगा, ये चीज तो साफ है। तो राजकुमार जी, आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस वर्कर्स से सीधे कनेक्टेड रहते हैं, कम्युनिकेशन खुला हुआ है, सीधे उनसे बात करते हैं वो, और आप लोग आरोप लगाते रहे कि राहुल गांधी से बात करना ही बहुत ही ज्यादा दूभर है, तो अब अगर वर्चस्व उन्हीं का कायम रहेगा तो क्या पार्टी बदल पाएगी? रीमा जी, मैं एक बात कहूं कि बहुत कठिन है डगर पनगट, ये बहुत कठिन डगर है, और ये कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस धार से चल रही है वो खतरनाक धार है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी का ऑफिस, राहुल गांधी के गनमैन, राहुल गांधी की सिक्योरिटी, राहुल गांधी के नजदीकी, जो बहुत, मैं उसको चमचे नहीं बोलता, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं तो NSUI से, और मुझे एक इतिहास मालूम है, और मैं लंबा समय दिल्ली में रहा हूं इनके साथ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्या होगा कि जिसका नाम उन्होंने आगे देना होगा, वो सारे के सारे मैसेज ये RG के ऑफिस से स्टेटों को जाएंगे कि किसको समर्थन करना है। ये इंडिपेंडेंट, या आप ये देख रहे हैं कि शायद ये सचमुच में डेमोक्रेसी से इलेक्शन होगा। ये डेमोक्रेसी से इलेक्शन ना हुआ है, ना हो सकता है, ये रिमोट कंट्रोल का इलेक्शन होगा, और वो इलेक्शन होगा जो RG के ऑफिस से जिस स्टेटों को मैसेज जाएंगे
वो वही काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी कांग्रेस में अब नहीं रही। डॉक्टर अजय, आप भी एनएसयूआई और तमाम आपने युवा कांग्रेस की बात की, जिस बात की तरफ इशारा राजकुमार जी कर रहे हैं, 2000 में जब चुनाव हुआ था, सोनिया गांधी जब लड़ी थी, उस समय की भी तस्वीरें सबके सामने थी ना। जितेंद्र प्रसाद जब जाते थे प्रचार करने के लिए, उनको दफ्तर बंद मिलते थे। भोपाल का दफ्तर बंद है, इधर प्रचार करने जा रहे हैं, वहां उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। सीधे तौर पे सबको बताया गया था कि किसको चुनना है। तो इसी तरफ अगर इशारा राजकुमार जी कर रहे हैं, हेमंत जी से भी जो बात हुई, क्या लोकतंत्र है पार्टी में, वो आपने भी कुछ गौर किया होगा। देखिए, हेमंत जी ने जो चर्चा की है राजस्थान के संदर्भ में, मुझे लगता है कि राजस्थान की चीज़ें जो होंगी, पहले अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद जो भी प्रक्रिया होगी लीडरशिप तय करेगी। उसमें उस लीडरशिप का पार्ट ऑलरेडी जो भी चुनाव अध्यक्ष उस समय बनकर आएगा वो भी उसका पार्ट होगा। जहां तक बात राजकुमार जी ने की है, राजकुमार जी एनएसयूआई कांग्रेस में रहे। सुनिए ना, स्टूडियो में नहीं तय होता है मुख्यमंत्री का पद। रीमा जी, यहाँ नहीं होता है। भाजपा वाले भी स्टूडियो में तय करते तो अभी सिंह साहब को मैं कहता इनको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए। सवाल यही है कि जो अध्यक्ष चुन के आएगा वही अगर राजस्थान का भी तय करेगा तो कैसे तय हो पाएगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये एक प्रक्रिया है हमारी, प्रक्रिया में आएगा। सीडब्ल्यूसी हमारी, उसकी चुनाव होगी, सारी प्रक्रिया हो रही है। जहां तक बात शंका व्यक्त करना राजकुमार जी का हो सकता है, उनकी शंका है और वो अब पार्टी में नहीं है तो और भी ज्यादा सशंकित है। पार्टी के प्रति समर्पण उनका दिख रहा है, जब पार्टी से छोड़ के चले गए तब वो ज्यादा समर्पित दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, उनका समर्पण भी, मैं उनका भी जो विश्लेषण है उसको भी सिरोधार्य करता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में चुनाव तो हो रहा है, बाकी किस पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया इतनी इस अंदाज में चलती है जिसमें सारी चीज़ें हों, जिसमें चुनाव लड़े जाएं, शीर्ष नेतृत्व का आपस में बातचीत हो और मुद्दों पर आपस में इस पर डिस्कशन भी होगा। आंतरिक डेमोक्रेसी की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ दिख तो रही है। ये यूएस में दिखती है, ये ब्रिटेन में दिखती है, ये यहाँ डेमोक्रेसी का ये अच्छा रूप है। मैं तो कहता हूँ भाजपा के साथियों को की भी कि आप लोग भी जेपी नड्डा जी को चलिए, अब जैसे भी बना दिया आप लोगों ने बना दिया, लेकिन आगे जब भी हो आप भी चुनाव प्रॉपर कराइए। और सिंह साहब भी चुनाव लड़ने की स्थिति में कैसे चुनाव हो रहा है बीजेपी में? जो चुनाव हो रहा है, कैसे? चुनाव हो रहा है, सारे डेलीगेट होंगे, आप देखिएगा। अच्छा, आज प्रक्रिया शुरू हुई है। अगले 10 दिन में चुनाव का हो सकता है 4-5 जरूर डिबेट करेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाहूंगा बार बार मैं आपके पास आकर उसका जवाब दूं। और ये चुनाव का जो एक ढंग होना चाहिए, चूंकि यूथ कांग्रेस का चुनाव हम लोगों ने लड़ा है और हम लोगों ने देखा है, राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस में पूरा सबको फ्रीडम दिया कि आप चुनाव लड़िए और लड़ करके आइए और जो जीतेगा वो नेता है। इसी तरह यहां भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ। ये हमारी प्रक्रिया की खूबसूरती है, पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की खूबसूरती है। क्या ये लोकतंत्र किसी और पार्टी में, मैं भाजपा की सिर्फ बात नहीं कर रहा, देश के किसी और पार्टी में, मैं सिर्फ भाजपा नहीं, मैं सिर्फ भाजपा नहीं, पूरे देश के किसी भी पार्टी में आप बताइए कि ऐसे चुनाव की प्रक्रिया क्या इस देश में है और होना चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं और राहुल जी के इसी भाव का मैं मानता हूं। जिस तरह यूथ कांग्रेस में उन्होंने चुनाव कराया, उस तरह आज मेन कांग्रेस में भी चुनाव हो रहा है और इसी कारण उन्होंने उस समय अध्यक्ष पद भी छोड़ा था। और आज भी वो जानते हैं कि वो यदि चाहे तो हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, लेकिन वो नहीं बनना यदि चाह रहे हैं तो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आंतरिक तौर पे भी हो और देश में भी डेमोक्रेसी स्थापित रहे, जिसके लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह सेंट्रलाइजेशन हो रहा है शक्तियों का एक सरकार के अंदर, जिस तरह लोगों की नहीं, वो भी है, वो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इस देश के मुद्दों से। नहीं, देश के मुद्दों से जुड़ा। अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए ना। आरपी सिंह जी, आपको सलाह दी है यहाँ कांग्रेस की तरफ से, आप लोग भी थोड़ा सा कांग्रेस के संविधान को, कांग्रेस के रूल्स को थोड़ा फॉलो कीजिए। बीजेपी भी ऐसे ही करेगी क्या इस बार चुनाव? राहुल गांधी जब पिछली बार अध्यक्ष बने थे तो कौन से संविधान को फॉलो किया गया था, ये बता दीजिए, याद करके बता दीजिए। किन लोगों ने नॉमिनेशन भरा था ये याद करके बता दीजिए। क्योंकि वो परिवार के युवराज थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई नॉमिनेशन नहीं भर सकता, किसी को छूट नहीं थी नॉमिनेशन भरने की। और ये जो G23 बार बार कहते हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वो हम थोड़ा कह रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के अभी भी गणमान्य सदस्य, उनमें से एक कपिल सिब्बल छोड़ दीजिए चले गए, या सॉरी 2, एक आजाद साहब भी चले गए। हाँ। बाकी तो G21 मेंटेन है, मनीष तिवारी भी वहीं पार्टी में है और शर्मा जी हिमाचल वाले भी वहीं पे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो हम तो नहीं कह रहे, तो ये जानकारी इनको होनी चाहिए। और वो जो बार बार गुहार लगाते हैं, जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जितना व्यथित होकर चिट्ठी लिखी और जो चिट्ठी में उन्होंने सब कुछ जिक्र किया, कहा कि किस प्रकार से 1.5 साल हो जाता है पार्टी के अध्यक्ष को मिलने के लिए उनके जैसे व्यक्ति को समय नहीं दिया जाता। तो स्पष्ट है किस प्रकार की पार्टी, किस प्रकार का लोकतंत्र सबको दिखता है। अंतर्गतवा तो रिमोट कंट्रोल पावर का
जो सेंटर है वो परिवार रहेगा। वो डाइनिंग टेबल पे 4 लोग बैठेंगे, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये 4 लोग बैठकर तय करेंगे कि पार्टी कैसे चलानी है और किसी राज्य में सरकार है तो वो कैसे चलानी है। इनके यहाँ लोकतंत्र की अपेक्षा करना ये कोई ठीक बात नहीं ना हो सकता है। डॉक्टर अजय, ये कौन वो जिनकी तरफ इशारा राजकुमार जी भी करे, क्योंकि अकेले नहीं है ना राजकुमार जी, गुलाम नबी आजाद यही कह के गए, कपिल सिब्बल यही कह कर गए, मनीष तिवारी भी लगातार ये मुद्दा उठाते रहे। मनीष तिवारी जो मुद्दा उठा रहे हैं, एक बार तो जरा मैं उस पर आपका जवाब तो चाहूंगी। अगर वो कह रहे हैं डेलीगेट्स कौन है, उनकी लिस्ट सामने नहीं आई है, CWC की पूरी जो लिस्ट है जिसकी बात हेमंत जी भी कर रहे हैं वो भी सामने नहीं आई है, तो अगर इतना घालम घाल चल रहा है तो लोकतंत्र की दुहाई आप कैसे दे सकते हैं इस चुनाव में? आपके टीवी चैनल पर ही मैं दिखा देता हूं दर्शकों को कि ये लिस्ट है डेलीगेट की, और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता के पास भी ये लिस्ट है। जब तो किसके पास नहीं है और किसके पास है? कार्यकर्ता नहीं है ना, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं सामान्य कार्यकर्ता भी हूं पार्टी का, और कार्यकर्ता होने के कारण एक ब्लॉक से मैं भी चुना गया हूं, बिहार के एक ब्लॉक से जहां से मैं आता हूं। हाँ। हर ब्लॉक के लीडर्स जो हैं चुनाव के प्रक्रिया से हम लोग आए हैं। ये बिहार के 596 डेलीगेट्स हैं जो वोटर होंगे, हम भी वोटर होंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, कम से कम चर्चा अंदर में कोई बात किसी को लग रही है तो बात तो हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो आंतरिक तौर पे हमारे लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है, पार्टी के अंदर कम से कम एक स्पेस जो है जहां बात रख रहे हैं, यदि किसी को कोई मतभिन्नता है, किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये बात जो आ रही है ये ऐसे ही आ रही है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? देखिए कोई आरोप नहीं है, आनंद शर्मा बोल रहे हैं। नहीं, आनंद शर्मा ने कभी ये नहीं कहा आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये झूठ बात फैलाई जा रही है। मनीष तिवारी ने भी ये बात नहीं कही कभी लोकतंत्र नहीं है। जो लोग जाते हैं उनको कुछ कहना होता है, और रेमा जी वो कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं सब जानते हैं। शशि थरूर जी आज गए थे चुनाव, शशि थरूर ने लेख लिखकर बोला कि कोई बात तो है ना इस चुनाव की प्रक्रिया में। नहीं, जिस समय उन्होंने ये लिखकर बोला था उस समय तक ये चुनाव की जो डेलीगेट्स की प्रक्रिया हमारी जारी थी, वो लिस्ट आ गई और उसको क्लियर भी हो गया और क्लियर भी हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला जिसको नहीं आप अजय जी ये लिस्ट हमारे चैनल के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, तो कम से कम डेलीगेट्स का जो मामला है क्या वो पूरी तरह से अब साफ गोई से कांग्रेस पार्टी सामने ला रही है? तो इस मुद्दे पर विराम माने कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया आ गई है? नहीं रीमा जी, ये कुछ भी नहीं है। अजय जी के पास हो सकता है कि बिहार के कुछ पोर्शन का ये हो। देखिए हम हैं पत्रकार, और किस पार्टी ने कौन सा चुनाव कैसे कराना है ये उस पार्टी का है, मेरा और आपका विषय नहीं है। लेकिन जब आप कहते हो पारदर्शिता का दम भरते हो, जब आप कहते हो कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, मैं हैरान हूं कि 17 राज्यों ने एक प्रस्ताव किए अलग अलग जगह पर मीटिंगें कर करके पीसीसी की कि राहुल जी को अध्यक्ष बनाया जाए। मैं ये कहता हूं जो आदमी एक बार ये कह चुका कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना, उन्होंने 2019 में कह दिया था कि ना मैं अध्यक्ष बनूंगा ना मेरे परिवार से कोई बनेगा, ये उन्होंने 2019 में कहा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्यों एक बंधुआ पार्टी की तरह व्यवहार करती है? पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, जब आप चुनाव के लिए परसों 17 अलग अलग परसों तक की बात कर रहा हूं मैं, कल 2 स्टेट्स में और हुआ 19 राज्यों में प्रस्ताव हुए कि राहुल गांधी को टेक ओवर करना चाहिए। मैं हैरान हूं, आज तो अजय जी कह रहे हैं कि लिस्ट आ गई है, चलो मैंने मान लिया लिस्ट आ गई। वो जो 19 स्टेट्स के अंदर जो लोग थे जो प्रस्ताव पास कर रहे थे, उनको ये पता था कि वो ब्लॉक समिति के मेंबर है, डीसीसी के मेंबर है, के मेंबर है, नहीं पता था। तो अगर आप इतना लोकतांत्रिक और पारदर्शी है तो सारे मेंबर्स जो 8095 के आसपास है उनको वेबसाइट पे डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? चलिए ठीक है हेमंत जी, वक्त की बात है, मैं रिएक्शन लूंगी डॉक्टर अजय से, और अंत में चलते चलते एक रिएक्शन राजकुमार से। अजय जी जल्दी से। देखिए हेमंत जी की बात से मैं आंशिक सहमत हूं। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, और नेता है, नेता के प्रति हमारा यदि समर्पण है तो इसमें क्या बुराई है? 19 राज्यों ने नहीं, हम तो कहेंगे पूरे 30 के 30 राज्य आज भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, और कांग्रेस का लाखों कार्यकर्ता चाहता है। उस प्रस्ताव में हेमंत जी मैं भी था पटना में जब वो प्रस्ताव हुआ, मैं एक वोटर के नाते, लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम एक स्वतंत्र वोटर है पार्टी के अंदर, जो पार्टी की प्रक्रिया है उसमें मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? आपको क्यों, आप पत्रकार हैं, आपको क्यों दूं मैं लिस्ट? पार्टी के अंदर ही ना लिस्ट चलेगी। अब ये आरपी सिंह साहब को थोड़ा मैं लिस्ट दे दूंगा कि आएंगे हमारा चुनाव देखने। पार्टी के लोगों सबके पास है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है, हर व्यक्ति के पास रिलीज हो गई है, रिलीज हो गई है, सबके पास है, तभी मेरे पास अजय हो गया। जिस प्रकार से अभी थोड़ी देर पहले आपने कांग्रेस के एक वरिष्ठ जो राशिद अल्वी जो वरिष्ठ इनके स्पोक्सपर्सन है ना, उनका बयान सुनाया। किस प्रकार से कह रहे थे कि शशि थरूर को लेकर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, सब दिख रहे हैं ना। तो
वैसा इशारा इनको भी अजय जी को भी मिल चुका है कि ठीक क्या है। करना क्या नहीं करना। चुनाव रिमोट है। कंट्रोल से चुनाव में हम चुनाव बात नहीं है, अरे करेंगे, दिख रहा विचार है रखेंगे। आपके यही ऑफिशियल चुनाव है। स्पोक्सपर्सन ऑफिशियल ये स्पोक्सपर्सन नहीं है कि ऐसे पार्टी मुंह पर की पट्टी ऑफिशियल बांध आप ले पार्टी और की ऑफिशियल लाइन जेपी तो नड्डा करते हैं ना, जिंदाबाद। मैं नाम ये नहीं ले रहा नहीं करेंगे उनका, हम। परंतु हम आपकी चुनाव पार्टी के लड़ने वाले ऑफिशियल लोग हैं, स्पोक्सपर्सन हमारे दीपिका अंदर है। शशि थरूर के बारे में क्या भाषा इस्तेमाल क्या करने कोई दिख रही भाषा है, नहीं, कोई गलत तो दिख भाषा रहा है कि नहीं, क्या मामला है, जनतांत्रिक कैसे है। और इसीलिए चलिए ठीक है, इसीलिए ये जो बात हो रही है, जिस बात की आरपी सिंह जी और हेमंत जी भी इशारा कर रहे हैं, राजकुमार जी भी इशारा कर रहे हैं, जिन लोगों को इस वक्त मैदान में उतारने के लिए या उतरने के लिए जो बात कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ पार्टी के बाकी लोग इस तरह से बयानबाजी करें तो जाहिर तौर पर ये तो सवाल बार बार पूछा ही जाएगा कि आखिर कहां पर ये हेमा जी जब चुनाव होगा तो बातचीत बिल्कुल, होगी। बिल्कुल, एक कैंडिडेट जो दो होगा तो उसके बारे में पक्ष और विपक्ष में भी चर्चा हम करेंगे। यही चुनाव की तिवारी हो खूबसूरती या फिर अशोक गहलोत हो, जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी 2 दिन में कि कल जब राहुल गांधी दिल्ली आते हैं तो आखिर वो अपने पत्ते क्या खोलते हैं और क्या साफ करते हैं, क्योंकि सस्पेंस अभी भी उनके ऊपर भी बरकरार है। बहरहाल आप सभी खास मेहमान आज हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कल 5 की पंचायत में इसी वक्त होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।